So let me start the concept of string handling in Python programming language. So in any programming language, no matter it is Python or Java or C or C++ .NET, definition of string remains same. Definition of a string is what? It is a sequence of characters. Sequence of characters. So when I use this word that is character, so generally we think about alphabets. So it is not same as alphabet. A character can be alphabet, it can be a digit, it can be a like symbol, it can be special character like slash t, slash n kind of concept. So in Python, a string is not a sequence of alphabets. A string is a sequence of characters. Let me take a very simple example. Suppose I want to store my name. So suppose my name is Aditya. Here you can see I'm having all the alphabets A, D, I, T, Y, A. Now suppose I want to represent my address in Python programming language. And let us suppose my address is A-10, comma, sector 5, comma, Noida. Suppose this is my address. So how I represent this address in Python programming language? Obviously, using the concept of a string. It means this is what? This is alphabet, this is symbol, this is digit, this is symbol, fine. This is like comma. So these are what? These all are the correct. So in Python programming language, string is what? String is a sequence of characters, not sequence of alphabets. So let me write it. It can be letter, it can be digit, can be a symbol, space, slash t, slash n. So all the things collectively represent character. Now, how to write a string syntactically? Conceptually, a string is a sequence of character, but how to represent a string in syntax? It is not like I need to print my name and I'm going to write like this, print Aditya. No, you will get error saying name Aditya is not defined. Similarly, wait a minute. So, so I was saying syntactically, if you need to write a string in Python programming language, so you have to use quotes. In a syntax, you need to write a string inside quotes. So in Python programming language, there are four types of quotes notation to represent a string. Very first notation is same as we use in C, C++, Java language. That is double quotes notation. You have to start the string using this double quote and again end the string using same double quote. So syntactically, you will write sequence of characters inside pair of quotes. Now, if you run this, you will get your output. If you want to print your address, you can print your address
in the string like A10, comma, sector 5, Noida, space, parenthesis, UP. It is string. Fine. Now, in Python programming language, we can also represent a string using pair of single quotes. Instead of using pair of double quotes, we can also use pair of single quotes. Suppose here if I write Python, it is fine. You can also write this Python in double quotes. Fine. So now if I try to run this code, you will get same output, that is Python. It means to represent a string, you can use either this notation or this notation. Now, we are also having two more notations to represent a string in Python programming language. Third notation is what? You need to put double quotes 3 times to start the string. 1, 2, 3. Then write your string. And again, close the string using same matching string. That is 3 times you need to put double quotes. 1, 2, 3. It is also a string in Python programming language. Now, fourth one, I will discuss difference between this and this. Fine. But first, let me complete all the notations of string in Python programming language. In Python, so this is Python specific. This is also Python specific. This syntax does not work in like C language or in Java language. This also does not work. And next one also. Fine. So in Python, you can also represent a string using uh, 3 times single quotes to start the string, and then again matching quotes 3 times put single quotes. This is also a string representation in Python language. Fine. Now let me discuss difference. In Python programming language, you can represent a string in multiple lines. For example, what I want? I want like S Dhoni was the captain of Indian cricket team. Nowadays, Virat is the captain of Indian. XYZ will be the captain. So what I'm having a string in multiple lines. So this is not 3 strings. This is a single string, which is starting from here, that is Dhoni, and ending in this future. So is it possible to represent a string in multiple lines in any programming language? So if I try to print this as, let's see what will happen. It is showing error, syntax error.
Error is what? You have to complete the string in the same line. Fine. Now, here comes the concept of triple quotes notation. But if you represent a string using triple quotes notation, then it is possible to have a string in multiple lines. Now, it works fine. This is a single string. This is not three strings. Fine. So in Python programming language, generally we use this type of notation to represent multi-line string. And there is another interesting story regarding this triple quotes concept. In Python programming language, if you use this notation independently, then it is considered as multiple line comment. Fine. But if you use this notation in expression, that expression can be print statement like this. Now this time it is not a comment, it is a multi-line string. This expression can be a variable assignment like this. Fine. So if someone asks you what is the difference between multi-line string and multi-line comment, so you will simply reply in Python programming language, there is no concept of multi-line comment. We are having only the concept of multi-line string, but if we use multi-line string independently, then it is considered as multi-line comment. Fine. So this is what multi-line string, and this is your what? This is your like a comment. Fine. So let me move ahead. Now we know how to represent a string in Python programming language. We can use any of the following four notations to represent a string in Python language. Now let's move ahead. Suppose I'm having a string s equal to Python. Now what I want to uh, I want to find number of characters present in this string s, that is 1. If I need to count manually, 1 2 3 4 5 6. So programmatically I need to count number of characters present in this string s. So is it possible or not? Answer is yes. How? In Python library, we are having a function that is len, L-E-N. Using the concept of len function, what we can do, we can find the length of a argumented string. Fine. Suppose I'm having two strings. S1, this is your S1 string, and this is your S2 string. Here I have written Python space is space a space language. Now, I need to find the length of S1. So in the len function, I will pass S1. So this len function returns number of characters present in this S1. So I'm saying, listen carefully, I'm saying it returns number of characters. I'm not saying it returns number of letters. It returns number of characters. It means when you use len function with S2, it will return like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Space is also a character. 8, 9, 10, 11, 12, 13, dot, dot, dot. Fine. So using len function, what we can do, using len function, we can find the length of a string using len function. Now, in Python programming language, we are having one more function, that is max function. Using max function, we can also find maximum character in a string. Maximum character in a string. So if I write here S1,
So what will be the maximum character present in this string? So you can think like, if it is A, then B, then C. So B is greater than A. C is greater than B. Fine. So similarly, if someone asks you in Python, Python, which is the maximum character, so you will get Y. exactly. It is Y. Similarly, I can find minimum character in a string. So we are getting this edge. हेलो Yes. हेलो सर ये y कैसे आया सर, ये नहीं समझ में आया सर मुझे। Y कैसे आया ये समझ में नहीं आया। ठीक है, नहीं सर। अब ये बताइए कि मान लीजिए मेरे पास ये क्लास है अभी, और इस क्लास में मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मुझे ये 10 स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पर रख दिया। अब मुझे टास्क दिया गया कि अरेंज दीज स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर और अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। तो कैसे अरेंज करें? अगर 10 लोग इस क्लास में हैं, एक का नाम है अमित, एक का नाम है आयुष, एक का नाम है सोनू, एक का नाम है मोनू। बताओ, इनको अरेंज करना है मुझे किस ऑर्डर में? छोटे से बड़े ऑर्डर में। कैसे करें अरेंज? यार बात करनी पड़ेगी यार, ऐसे तो हम तो ये तो हमको 10 साल लग जाएंगे पाइथन सीखने में। हेलो, बताओ मैं। तो सर सबसे पहले से ए वाले को जो है ना, सबसे हमको उसको करेंगे, सबसे पहले ए लेंगे। हाँ, तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, पाइथन भी तो यही कर रहा है। पाइथन ने क्या करा है, ये जो मैक्स फंक्शन है, इस मैक्स फंक्शन का काम यही है कि इस S1 में जितने भी करेक्टर आ रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा करेक्टर डिक्शनरी ऑर्डर में कौन है? अब बताओ कौन सा होना चाहिए इनमें? इन सब में सबसे बाद में कौन आएगा डिक्शनरी ऑर्डर में? y। तो यही तो y। आपको करा था यार, ओके देखो आपको क्या आ रहा था। ओके 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 सर, ओके फाइन। फाइन। नाउ let's move ahead. Suppose I'm having a string like this Python. Is it possible to perform arithmetic operation on this string? Arithmetic operation we cannot perform on string. Arithmetic operation can be performed on numeric type like integer, float. But if I try to perform, then what will happen? Definitely you will get error. So if I try to add 10 in this S, so it is not possible. You will get error. Can only concat str to str. But thing is what? If you try to add a string to a string, then it is not a error. You will get result as a concatenation. तो string के साथ आप string को क्या कर सकते हैं? कॉन्केट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग के साथ किसी न्यूमेरिक वैल्यू को आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। You will get Python ABC, but it is not like कि आपने सोचा कि सर प्लस कर सकते हैं तो माइनस भी कर सकते हैं, S माइनस ABC, ऐसा भी नहीं होगा, एरर आ जाएगी। तो सिर्फ प्लस के लिए स्ट्रिंग हमारा सपोर्ट करता है कॉन्कैटिनेशन। फाइन, तो ये आपका एरर आ जाएगा, ये आपका नहीं चलेगा। नाउ
If you apply multiplication as multiply by ABC, again you will get error. मल्टीप्लीकेशन डिवीजन रिमाइंडर सब कोई नहीं चलेगा, है ना, न्यूमेरिक के लिए चलते हैं. बट सरप्राइजिंगली इफ यू यूज स्ट्रिंग मल्टीप्लाई बाय इंटीजर वैल्यू it works fine. You will get error, sorry, you will not get error, you will get repetition of this Python 3 times, one time, second time, and this third time. Fine. So if I write here 30, you will get 30 repetition of this as string, and final result you will get as a concatenated string. Fine. But here you need to remember one thing: you cannot use floating value with this asterisk symbol. So it is not possible to repeat this string as 3.2 times. तो ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारी एरर आ जाएगी. आप इंटरचेंज कर सकते हैं पोजीशन इंटरचेंज करने का मतलब होता है कि आप पहले न्यूमेरिक लिख सकते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई जो भी स्ट्रिंग है वो आप लिख सकते हैं. ये हो सकता है. किसी भी स्ट्रिंग के अंदर अगर आप किसी करैक्टर को फाइंड करना चाहते हैं या किसी सब स्ट्रिंग को सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर होता है. सपोज आई एम हैविंग ए स्ट्रिंग Python is a language, and Python is a language में I need to check whether in this string you are having a or not. So there is a membership operator that is in, और इस membership operator में हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं वो स्ट्रिंग जिसमें हमें क्या करना है, सर्च करना है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, वो करेक्टर जिसको मुझे सर्च करना है. तो मैं ए को सर्च करना चाहता हूँ. आई विल राइट हियर ए इन एस. सो दिस मेंबरशिप ऑपरेटर दैट इज इन, इट रिटर्न्स आइदर ट्रू और फॉल्स. सो इट रिटर्न्स ट्रू इफ दिस करेक्टर इज अ मेंबर ऑफ दिस स्ट्रिंग एस, and it returns false if this character is not a member of this string s. So here you will get true. And one thing more, string is a case sensitive concept. So if you try to write this capital A, you will get false. Small a, capital A, both are not same. So using this membership operator, you can also search a substring. So what you want to search like on whether in this string as you are having on substring or not. So you can see here this is on. सबस्ट्रिंग का मतलब होता है एक साथ उन कैरेक्टर का सीक्वेंस कभी आया नहीं आया. ठीक है, so you are getting this true. सर जो सर्च करना है वो हमेशा इसमें होगा, कोट्स में होगा. That is substring. It is also a string. Sorry, I didn't get you, sir. It must be a string that you want to search. Okay, yes. But in any type of quote, double quote, triple quote. Any type of quote, any notation you can use to represent a string anywhere. ठीक है सर. So this is what this is this. Now similarly we are having not in operator. So not in operator returns true if this substring or this character is not a member of this string s. Fine. So on not in s, तो ये false बोलेगा. ठीक है, क्योंकि on इसका member है. जब हम पाइथन की लाइब्रेरी की बात करते हैं तो पाइथन की लाइब्रेरी में कुछ रेडीमेड कोड होता है. और ये जो रेडीमेड कोड होता है, तो पाइथन के अंदर
दो तरह से हमें दिया गया है, हम एक ही पहलू को जानते हैं, दैट इज फंक्शन, अनदर पहलू इज मेथड. So in Python programming language, a ready-made code is given either in the form of function or in the form of method. अभी तक हम जितना भी Python में लाइब्रेरी में फंक्शन पढ़ रहे थे वो सब फंक्शन ही पढ़ रहे थे, बट पहली बार हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट आएगा आज मेथड. सो मेथड भी फंक्शन की तरह ही होता है, रेडीमेड कोड को कंटेन करता है, बट डिफरेंस क्या है कि ये किसी टाइप के अकॉर्डिंग होता है. अगर एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करी जाए तो उसको देखते हैं. लाइक अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास ये स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के अंदर मुझे पता करना है कितने कैरेक्टर्स हैं, ये है पहला कॉन्सेप्ट. दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, माइट बी आज या कल, लिस्ट नाम से टॉपिक होगा. इस लिस्ट के अंदर मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं, ठीक है. तीसरा कॉन्सेप्ट, मेरे पास एक डिक्शनरी है, इसमें बहुत सारे आइटम हैं. चौथा कॉन्सेप्ट, मेरे पास एक एरे है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं. पांचवा कॉन्सेप्ट, मेरे पास एक टपल है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं. अब मुझे करना क्या है, मुझे पाइथन की लाइब्रेरी में एक रेडीमेड कोड देना है. वो रेडीमेड कोड क्या होना चाहिए कि अगर वो स्ट्रिंग के साथ चले तो स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं ये काउंट करके बता दे, और अगर लिस्ट पे चलाऊं तो लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं मुझे बता दे. सिमिलरली अगर मैं डिक्शनरी पे चलाऊं तो बता दे मुझे. इसी तरह से एरे पर अगर मैं यूज करूं उस कोड को तो ये बता दे एरे में कितने एलिमेंट अभी रखे हुए. तो वो कोड हमें लेन के अंदर लिखकर दिया गया. अब अगर आपसे कोई पूछे लेन लाइब्रेरी में जब बनाया गया है तो ये किसी एक के अकॉर्डिंग बनाया गया है या मल्टीपल डेटा टाइप इसे यूज कर सकते हैं, तो आप आंसर देंगे मल्टीपल डेटा टाइप इसे यूज कर सकते हैं. तो जब कभी लाइब्रेरी के अंदर कोई ऐसा रेडीमेड कोड लिखा गया जो मल्टीपल टाइप पर यूज किया जा सकता है, दैट इज नोन एज फंक्शन. मल्टीपल टाइप. अब मुझे क्या करना है, मुझे पाइथन की लाइब्रेरी में एक और रेडीमेड कोड लिखना है. वो रेडीमेड कोड क्या करेगा, लोअर लेटर्स को अपर लेटर्स में कन्वर्ट करेगा. अगर ये ABC स्मॉल में लिखा हुआ है तो इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C. जब पाइथन के लाइब्रेरी में इस काम को करने के लिए रेडीमेड कोड लिखा जा रहा था तो उन्होंने सोचा क्या इस फीचर का यूज कोई और भी करेगा या सिर्फ स्ट्रिंग ही करेगी. तो इसका आंसर आया कि नहीं, इसका यूज तो सिर्फ स्ट्रिंग ही करेगी, किसी और को जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन सब का यूज करने के. तो पाइथन के लाइब्रेरी में एक कॉन्सेप्ट बनाया गया जिसका नाम है अपर. बट upper is not a function, upper is a method because it is specific to string only. तो पाइथन की लाइब्रेरी में जब भी कोई रेडीमेड फंक्शनलिटी मल्टीपल डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग बनाई गई तो उसको फंक्शन के नाम से दिया गया, और अगर वो किसी पर्टिकुलर टाइप के लिए बनाई गई तो वो हमारा मेथड के नाम से दी गई है. ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन है और ये मेथड है. अब इसको रियल टाइम पर एक एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं, ये मेरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और ये मेरा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है. तो अगर आप ध्यान से इस एनालॉजी को यहाँ लगा पाएं तो मैं बोलूँगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज लाइक ए फंक्शन. कोई भी यूज़ कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकता है. प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हर किसी के लिए नहीं है, जिसने वो परचेज किया है व्हीकल सिर्फ वही उसका यूज़ करेगा, हर कोई उसका यूज़ नहीं कर सकता. तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इज लाइक मेथड. जस्ट फॉर एनालॉजी आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल, राइट. तो पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर जब भी ऐसा कभी हुआ कि हमें कोई ऐसी फंक्शनलिटी रखनी है
जो किसी एक डेटा टाइप के लिए ही होगी उसको मेथड के नाम से बोला गया। और अगर कोई फंक्शनलिटी ऐसी है जो किसी के लिए भी हो सकती है उसको फंक्शन के नाम से रखा गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन में लिख देता हूँ इस पॉइंट के लिए। फंक्शन रिप्रेजेंट can be used by multiple types, whereas a method represents type specific। हमारा मेथड है वो हमारा टाइप स्पेसिफिक होता है। फाइन, तो अब हम कुछ मेथड पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिंग को लेकर। पहले मैं सबके नाम लिख देता हूँ, जो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद एक एक करके उनको प्रोग्राम में सीखेंगे कि किस मेथड से क्या फीचर हमें मिलता है। Etc. So these are the some commonly used methods that we are going to use in this class. Fine. Now let me discuss all these methods one by one using code. Suppose I am having this string s equal to like क्रोमा कैंपस। मेरे पास एक स्ट्रिंग है एस क्रोमा कैंपस। नाउ इन स्ट्रिंग वी आर हैविंग a method that is upper. So whenever I need to execute a method is having its own specific syntax. Syntax is what? पहले आप उस स्ट्रिंग वेरिएबल को लिखेंगे जिस पर आप मेथड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, डॉट लगाएंगे, डॉट के बाद मेथड का नाम लिखेंगे। मैंने लिख दिया आपका। अब ये कोड क्या करता है, ये कोड हमें ये बता रहा है कि जो एस स्ट्रिंग है इसके अंदर जितने भी लेटर्स हैं वो अपर केस में आ जाएंगे, और वो जो लेटर्स नहीं है जैसे स्पेस या कोई सिंबल होता या कोई डिजिट होती वो हमारा जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि अपर लोअर सिर्फ लेटर का हो सकता है, डिजिट लोअर अपर में नहीं होती है, स्पेस लोअर अपर में नहीं होता है कि लोअर स्पेस या अपर स्पेस नहीं। फाइन, सो ये अपर क्या करेगा, इस काम को कर देगा। अब सपोज करिए मेरे पास एक और स्ट्रिंग होती, मान लीजिए आर नाम से, और यहां मैंने लिखा होता इंडिया। तो अब ये जो अपर मेथड है ये किस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करेगा, एस वाली। अगर मैं आर वाली स्ट्रिंग को भी अपर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, आई नीड टू कॉल सेम मेथड ऑन आर वेरिएबल, आर डॉट लाइक दिस। फाइन, तो इस तरह से किसी भी मेथड को किस स्ट्रिंग के लिए आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उस स्ट्रिंग को, उस स्ट्रिंग का जो वेरिएबल होगा वो आप डॉट लगाकर उसके पहले लिखें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपर ने पूरे प्रोग्राम में जितनी स्ट्रिंग थी सबको अपर में कन्वर्ट कर दिया, नहीं, जिस स्ट्रिंग वेरिएबल पर आप इसे कॉल कर रहे हैं उसके लिए करेगा, जिसके लिए नहीं कर रहे हैं उसके लिए नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी मैं एक ही रख रहा हूं,
सिंपलिसिटी के लिए। तो मैंने यहाँ पर कर दिया एस डॉट अपर। अब स्ट्रिंग में जितने भी मेथड हैं, अगर वो किसी भी स्ट्रिंग में कोई चेंज करते हैं तो वास्तव में वो मेमोरी में एक नई स्ट्रिंग बना देते हैं, वो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को चेंज नहीं करते। इट मीन्स इफ आई ट्राई टू प्रिंट एस बिफोर एग्जीक्यूटिंग दिस अपर मेथड and after executing this method upper, surprisingly you will see same output. You are getting same output. Obviously you will ask her what is the need of this method, क्यों इतनी मेहनत करी हमने। तो हमें समझना पड़ेगा कि इंटरनली क्या हुआ। इंटरनली हम ऐसे समझ सकते हैं, दिस इज योर एस वेरिएबल एंड इट इज पॉइंटिंग टू दिस स्ट्रिंग दैट इज सी आर ओ एम ए स्पेस campus like this. Fine. S is pointing to this string. So when you call upper method, what will happen? Internally, upper method, ध्यान से सुनना क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है और कई बार ऐसा होगा आगे। This upper method generates a new copy of this string, and in this new copy you will be having all the letters in uppercase, that is C R O M A space as it is आएगा, then campus। यानी कि ये मेमोरी खराब कर रहा है, एक तरह से हम ऐसे समझ सकते हैं, इसने इसी में चेंज नहीं करा, ऐसा इसने नहीं करा। अगर ये ऐसा कर देता तो अपर मेथड कॉल होने के बाद जो एस है वो अपर केस में बन जाता, लेकिन इसने ऐसा नहीं करा। इसने क्या करा, एक नई स्ट्रिंग बना दी हमारी मेमोरी के अंदर। अब ये जो नई स्ट्रिंग बनाई है ये हमारी मेमोरी के अंदर अनरीचेबल है क्योंकि कोई इस तक पहुंचने वाला नहीं है, क्योंकि एस अभी भी किसको रेफर कर रहा है, पुरानी वाली कोई रेफर कर रहा है। इसलिए जब आपने एस प्रिंट कराया तो उसने वही दे दिया जो उसको उसके पास था, जिसको वो रेफर कर रहा था। तो करें क्या, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके दो सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन ये है कि ये जो अपर मेथड ने नई स्ट्रिंग बना दी है, इस स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में रिसीव करना होगा। लाइक मैंने यहाँ पर इसको रिसीव कर लिया यू नाम के वेरिएबल में। यू मतलब अपर केस स्ट्रिंग, जरूरी इसका नाम यू रखना, आप इसका नाम आई रख दो, कुछ भी रख दो, जस्ट फॉर रीडेबिलिटी आई एम यूजिंग यू वेरिएबल। अगर मैं इस स्टेटमेंट को मेमोरी में पिक्चराइज करा दूं तो इसका मतलब होगा कि अपर मेथड ने जो एक नई कॉपी बनाई जिसमें सारे लेटर अपर केस में थे, उस नई कॉपी को पॉइंट करने वाला भी आ गया, डेट इज कौन? यू। फाइन। सो अब अगर आप एस यूज करेंगे तो वो जैसा था वैसा ही होगा, लेकिन अगर आप यू प्रिंट कराएंगे then you will get your expected output. Fine. Now you are getting this chroma campus. Fine. Second option is what? Second option is that कि जो यहां पर अपर मेथड से स्ट्रिंग बनी है, आप इसको सीधे सीधे प्रिंट मेथड में भी इस्तेमाल कर सकते थे, कुछ इस तरह से। प्रिंट के अंदर लिखेंगे एस डॉट अपर। अगर आप प्रिंट के अंदर एस डॉट अपर लिखेंगे तो इसका मतलब है कि अपर मेथड एक नई कॉपी बनाएगा, वो बनाएगा, ठीक है, लेकिन उस नई कॉपी को आपने किसी वेरिएबल में तो असाइन करा नहीं, लेकिन आपने प्रिंट फंक्शन को दे दिया। अब प्रिंट फंक्शन क्या करता है? प्रिंट फंक्शन इस कॉपी को प्रिंट कर देगा, लेकिन उसके बाद ये आपके काम में नहीं आएगी क्योंकि आपने इसे किसी वेरिएबल में असाइन करके नहीं रखा है। तो अगर आप किसी भी ऑपरेशन से जो नई स्ट्रिंग बनी है उसको जस्ट प्रिंट ही करना चाहते थे तो आप प्रिंट के अंदर ही ऑपरेशन का जो मेथड है वो कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जो ऑपरेशन करने के बाद स्ट्रिंग बनी है नई उसको हम आगे के प्रोग्राम में भी इस्तेमाल करेंगे। Obviously, you have to store that generated string into a variable, जैसे मैंने इससे पहले वाले प्रोग्राम में किया था, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रिंग प्रिंट हो गई है कैपिटल वाली, अब आप बोले मुझे दोबारा चाहिए तो
है ही नहीं आपके पास। अब दोबारा से आपको अपर कॉल करना पड़ेगा, तो समय लगेगा आपका फिर, क्योंकि एक बार अपर मेथड से जो समय लगा था वो समय दोबारा लगाना पड़ेगा आपको। तो अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि अपर केस से जो स्ट्रिंग बनी है उसको आप कई बार आगे के कोड में यूज कर सकते थे, तो पहले आपको एक वेरिएबल में इसको संभाल कर रख लेना चाहिए था, जैसा कि हमने पहले वाले कोड में किया था। फाइन। तो अभी मैं यहाँ पर इसी तरह से आगे आपको समझा रहा हूँ। नाउ सिमिलरली वी आर हैविंग a method that is lower. So lower method generates a new string, and in this new string all letters must be in lowercase, and you will see they are in lowercase. Fine. Now we are having one more method s dot, that is swap case. Swap case means जो अपर केस में है वो लोअर केस में आ जाएगा, और जो लोअर केस में है वो अपर केस में आ जाएगा। फाइन। सी लोअर में था, अपर में आ गया, आर अपर में था, लोअर में। फाइन। नाउ वी आर आल्सो हैविंग वन मोर मेथड दैट इज कैपिटलाइज. Capitalize method will generate a string, and in this string only first letter will be in uppercase and remaining letters in lower case. तो सिर्फ कैपिटल होगा सी, सबसे पहला वाला, बाकी आर ओ एम ए और आगे के जितने भी लेटर्स हैं ये सब लोअर केस में होंगे। Fine. We are having one more method that is s dot title. टाइटल मेथड क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग में जितने वर्ड आ रहे हैं, वर्ड कैसे मानेगा, स्पेस के बाद जो भी आएगा उसको वर्ड मानेगा। तो इसको एक वर्ड मानेगा, इसको एक वर्ड मानेगा। हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे लेटर्स लोअर में होंगे। तो क्रोमा में सी कैपिटल होगा, बाकी सब लोअर में होंगे। कैंपस का सी कैपिटल होगा, बाकी सब लोअर में होंगे। दैट इज टाइटल। Fine. Now you will be thinking, is it possible to get the detail of all the methods available in the string? Because अगर मैंने आपको ये 4-5 पढ़ा दिए, तो क्या ये ऐसा जरूरी है कि मैंने आपको सारे पढ़ा दिए? हो सकता और भी रह गए हूँ। Obviously, मैंने इसके पहले वाले ही स्लाइड में लिखा था commonly used methods. So we are going to discuss commonly used methods, not all the methods. ऐसा नहीं है कि हमें सारे मेथड पढ़ने, सारे पढ़ेंगे तो फिर 2 दिन इसी में लग जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, यूज कैसे करना है वो समझ में आना चाहिए। नाउ अगर आपको पता करना है कंप्लीट मेथड की डिटेल, कौन सा मेथड क्या काम करता है, क्या नाम है उसका, तो आप क्या करेंगे, यू जस्ट call help function, and in the help function what you need to write, you need to write s, you will get, or you will write str. Str is what? So string is a data type. Basically actual name of data type is str. Generally we use string in pronunciation. Actual type is not string, actual type is str. So if I try to get type of this s, print type of this s, if I try to get, then you will not get string, you will get str. So name of data type is just str. So in the help function you need to pass the name of that particular data type. So here I am passing this str. Now see the output. Squeezed text, इसका मतलब है कि हेल्प फंक्शन ने जो आउटपुट जनरेट किया है वो इतना ज्यादा है कि आपकी आउटपुट विंडो पे एक बार में पूरा नहीं दिखाया जा सकता। तो उसने क्या करा है, स्क्वीज्ड करके रख दिया है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो एक्सपेंड हो जाएगा। यू कैन सी मेथड्स। सो वो मेथड जो डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहे हैं उनको आप इग्नोर करेंगे। मेथड्स
that start with this double underscore considered as private methods, and internally these methods are used by Python library methods. As a programmer, we cannot execute these methods. So आप उन मेथड्स को सर्च करिए जो बिना डबल अंडरस्कोर स्टार्ट हो रहे हैं. आगे बढ़ेंगे, मिलेंगे. सबसे पहले मिला ये कैपिटलाइज. नाउ इसको पढ़ लीजिए क्या कह रहा है. रिटर्न ए कैपिटलाइज्ड वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग. मोर specifically, make the first character have upper case and the rest lower case. Fine. तो ये कैपिटलाइज समझ में आता है. इस तरह से मैंने आपको अभी पढ़ाया था. अपर, अपर को सर्च करेंगे तो ये मिल गया लोअर. रिटर्न ए कॉपी, you can read it here. Return a copy of the string converted to lower case. Right. So using help function, you can obtain details of all the methods with their documentation present in this string data type. So this syntax works with any data type, not only with string data type. Suppose in the further classes, if I need to get the detail of list data type, you just need to write here list. You just need to write here dictionary. You just need to write here tuple. That's it. You can write any type. Fine. So कुछ methods जो मैं discuss कर रहा हूँ हम उनको cover करते हैं. तो ये हो गया हमारे case से related methods. Now let's move ahead. अब सपोज करिए मैं क्या चाहता हूं, एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाऊंगा और आपको उसको इंटरप्रेट करना है. क्या एप्लीकेशन बनानी है मुझे? यूजर से हम उसका यूजर आईडी मांगेंगे और पासवर्ड मांगेंगे और हम मैच कराएंगे अपने पास पहले से जो रखे हुए यूजर आईडी पासवर्ड है उससे. अगर वो मैच हो जाते हैं तो हम यूजर को बोलेंगे यू आर वैलिड यूजर. अदरवाइज हम उसको बोलेंगे यू आर नॉट ए वैलिड यूजर. नो, आई एम गोइंग टू राइट दैट कोड. सो फर्स्ट आई नीड टू आस्क user id from the user. Using input function, I will ask it enter user id, and in the p variable I will store password. Password. Now I need to check whether u and p is having specific values. So specific values मैं मान लेता हूँ u इक्वल टू, कंपेयर कर रहा हूँ, असाइन नहीं कर रहा हूँ, डबल इक्वल लगाना है, एडमिन. तो मैंने लिख दिया एडमिन एंड p इक्वल टू एडमिन. मैंने ये माना कि अगर यूजर नेम की वैल्यू एडमिन है और पासवर्ड की वैल्यू भी एडमिन है तो मैं एक मैसेज दूंगा वैलिड यूजर. तो कल को हम इसको डेटाबेस के साथ भी यूज कर सकते हैं. आज हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं. सो मैंने लिख दिया यहाँ पर वैलिड यूजर एल्स प्रिंट invalid so if I write here enter user id admin, password admin, valid user. If I write here username admin, password admin. So what you will see if I enter this user id and password, valid user or invalid user? Sir, invalid user. What is that? Valid or invalid? Why? User ID change कैसे? Exactly. Fine. So
at the time of comparison I have compared you with admin, but you can see admin is written in lower case. So मैंने पहले बताया था कि Python is a case sensitive language, fine. String is also a case sensitive concept. So admin और ये admin अलग अलग है, तो आपका आंसर क्या आएगा? मना कर देगा, इनवैलिड यूजर। बट अगर हम ध्यान से सोचें जीमेल के बारे में या फेसबुक के बारे में या किसी भी अच्छी वेबसाइट के बारे में, तो वहां पर आप ऐसा पाएंगे नहीं। यूजर आईडी केस सेंसिटिव कभी नहीं होती, पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है। अगर आप पासवर्ड देते हैं तो वो लोअर केस में है तो लोअर केस का ही मैच करेगा, अपर केस में है तो अपर केस का मैच करेगा, लेकिन यूजर आईडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप यूजर आईडी लोअर केस में लिखेंगे तब भी चल जाएगी, अपर केस में लिखेंगे तब भी चल जाएगी, और अच्छी अच्छी वेबसाइट में चल जाएगी, जीमेल में चल जाती है, ठीक है। तो मुझे भी यही करना है, मेरा प्रोग्राम जीमेल से कम थोड़ी है कोई। मैं भी यही चाहता हूं कि मेरा यूजर नेम चाहे लोअर केस में आए चाहे अपर केस में आए वो मैच हो जाए, लेकिन पासवर्ड के लिए मैं इसी तरह से मैच कराऊंगा। सो क्या करें यहाँ पर अब कि यूजर को हम फ्री करना चाहते हैं, चाहे लोअर केस में यूजर आईडी लिखे चाहे हमारा अपर केस में लिखे, क्या करना चाहिए? तो एक काम करते हैं क्या कि जो भी यूजर से वैल्यू आ रही है यूजर नेम की, हमने क्या करा, उसको आते ही क्या कर दिया, यू डॉट लोअर में कन्वर्ट कर दिया। अब यूजर ने चाहे वो अपर में लिखा था या लोअर में लिखा था, मैंने सब किस में कन्वर्ट कर दिया, लोअर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आगे जब मैच कर रहा हूं ना मैं लोअर में मैच कर रहा हूं, इसलिए मैंने उसको लोअर में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराने जा रहा हूं और अपने से किसी से क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं आपका आंसर क्या होगा। विद एक्सप्लेनेशन आपको आंसर बताना है। सचिन कुमार बताइए इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, वैलिड और इनवैलिड विद एक्सप्लेनेशन? सर इनवैलिड आएगा। व्हाई? क्योंकि इसकी कॉपी जो बनेगी वो हमने किसी वेरिएबल में सेव ही नहीं की है। गुड, फाइन। तो इसका आउटपुट अभी भी कैसा आएगा हमारा, इनवैलिड, बिकॉज आपने एफर्ट लगाए लेकिन वो एफर्ट सही डायरेक्शन में नहीं गए। यानी कि जो लोअर मेथड है वो कॉपी बना रहा है, काम कर रहा है लेकिन वो एक कॉपी बना रहा है, और उस कॉपी को तो आपने किसी वेरिएबल में रखा ही नहीं है। तो जो यू है वो अभी भी उसी को रेफर कर रहा होगा मेमोरी के अंदर जो अभी यूजर से रन टाइम पर आया था। इट मींस स्टिल यू विल गेट इनवैलिड। सो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक तो यही है कि लोअर मेथड से जो कॉपी बनी है उसको आप एक वेरिएबल में यूज कर लीजिए। मैंने ये सोचा कि आगे के कोड में मैं हमेशा लोअर कॉपी को ही यूज करने वाला हूं, तो एक नया वेरिएबल में ना बनाकर यहां पर मैंने u को ही वो कॉपी असाइन कर दी। इसका मतलब क्या हुआ, u इस लाइन पर उस स्ट्रिंग को रेफर कर रहा है जो अभी यूजर से आई थी। इस लाइन पर u को मैंने चेंज कर दिया, u से क्या बोला कि अब आप ना वो नई कॉपी जो बनी है आप उसी को रेफर करो, हम एक नया वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि हमें आगे जरूरत ही नहीं है उसकी, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं और हम चाहें तो एक नया वेरिएबल ले सकते हैं, फिर नए वेरिएबल के साथ कंपैरिजन करना होगा मुझे। वैलिड। अब इस प्रोग्राम को मैं एक बार और रन कराऊंगा और आप देखेंगे ये फिर से इनवैलिड बताएगा और आपको पकड़ना है कि मैंने करा क्या इसमें। ये इनवैलिड देगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको लगेगा ये सही देगा लेकिन ये सही नहीं देगा, ये बोलेगा इनवैलिड है। मैं इस कोड को फिर से रन कराता हूं और इस बार ये सही बताएगा। अब मैं इस प्रोग्राम को स्लो मोशन में रन कराता हूं और आपको देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। और अभी मैं जो कर रहा हूं वो जानबूझकर कर रहा हूं, लेकिन हम जो लेमैन है उससे ये गलती हो सकती है ना, जरूरी नहीं है वो जानबूझकर कर रहा हूं। देखते इसको मैं रन करा रहा हूं फिर से। मैंने लिखा यहां पर एंटर यूजर आईडी, उसके बाद जल्दीबाजी में क्या हुआ मुझसे ना स्पेस की प्रेस हो गई, फिर मैंने एंटर करा, अब पता तो चल नहीं रहा है आपको। तो यहाँ पर यूजर आईडी की वैल्यू एडमिन स्पेस है ना कि एडमिन है,
और एडमिन स्पेस एडमिन से मैच कराएंगे तो सीधी सी बात है मैच तो हो गई नहीं, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया मैंने एडमिन, इसलिए इनवैलिड होता है। तो बहुत सी वेबसाइट ऐसा भी कॉन्सेप्ट फॉलो करती हैं कि अगर यूजर आईडी के स्टार्टिंग में और लास्ट में स्पेस आता है तो उसको वो ट्रिम कर देती हैं, यानी कि उसको हटा देती हैं, बट मिडिल वाले स्पेस को नहीं हटाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हो सकता है बाय मिस्टेक यूजर से जो स्पेस की है वो प्रेस हो गई हो, क्योंकि स्पेस की सबसे बड़ी की होती है हमारे कीपैड में, तो वो कई जगह से प्रेस होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो कई वेबसाइट बनाने वाले ऐसा मान के चलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे, कुछ ऐसा मानते हैं कि अगर यूजर आईडी की स्टार्टिंग में स्पेस आते हैं और लास्ट में स्पेस आते हैं तो उनको हम लोग पहले हटाएंगे उसके बाद मैच कराएंगे। सेम कॉन्सेप्ट मुझे यहां पर भी इंप्लीमेंट करना, बट दिस इज नॉट ट्रू विद पासवर्ड। यूजर आईडी में हम फ्लेक्सिबिलिटी इतनी देते हैं यूजर के लिए, पासवर्ड में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जैसा है वैसा ही है। इवन स्पेस भी आपका क्या माना जाएगा, एक वैलिड कैरेक्टर माना जाता है पासवर्ड में, ठीक। तो यहां पर कैसे करें इस काम के लिए? सो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक और मेथड है जिसका नाम है हमारा स्ट्रिप। स्ट्रिप क्या करता है? स्ट्रिप हमारा स्टार्टिंग स्पेस और लीडिंग स्पेस, मतलब शुरू के स्पेसेस और लास्ट के स्पेसेस को हटा देता है, लेकिन अगर मिडिल में कहीं स्पेस आ रहा है तो उसको नहीं हटाएगा। देखते हैं, अगर लिखा मैंने यहाँ पर एडमिन, इवन स्टार्टिंग में भी स्पेस दे दिया और लास्ट में भी स्पेस दे दिया और फिर उसके बाद एडमिन, बोलेगा सही है, सब ठीक है, क्योंकि इसने क्या करा होगा, इसको हटा दिया होगा और इसको भी हटा दिया होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूजर आईडी में जहां भी स्पेस आएगा स्ट्रिप उसको हटा देगा। मैं लिखा यहाँ पर AD स्पेस MIN, ठीक है, और फिर यहाँ लिख दिया एडमिन। अब ये मत सोचिएगा कि सर अभी पढ़ाया था आपने स्ट्रिप से स्पेस हटता है, तो मैंने साथ में ये भी पढ़ाया था स्टार्टिंग का स्पेस हटाए जाते हैं, चाहे कितने भी हो स्टार्टिंग में, 1 हो 2 हो 3 हो 5 हो कितने भी हो, लास्ट में कितने भी स्पेस हो वो सब हटाए जाते हैं, ठीक है, बट नॉट स्पेस इन मिडिल, यू आर गेटिंग इनवैलिड। तो ये हमारा हो जाता है स्ट्रिप वाला। अब हमारे पास स्ट्रिप की तरह ही एक और कॉन्सेप्ट है एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप क्या करता है? एल स्ट्रिप लेफ्ट स्पेस हटाएगा, राइट वाला नहीं हटाएगा। इसी तरह से हमारे पास है आर स्ट्रिप। आर स्ट्रिप क्या करता है? आर स्ट्रिप हमारा राइट वाले स्पेस को हटाता है, लेफ्ट वाले को नहीं हटाता। एक सिंपल प्रोग्राम से मैं एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप को करके दिखाता हूं। मान लीजिए ये स्ट्रिंग है मेरे पास और यहाँ लिखा मैंने स्पेस पाइथन स्पेस इज ए लैंग्वेज स्पेस, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है और यहाँ सभी स्पेस है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर एस डॉट स्ट्रिप, स्टार्टिंग का स्पेस और लास्ट का स्पेस चला जाता, लास्ट में कर्सर, लास्ट पॉइंट, लास्ट कैरेक्टर पे कर्सर स्पेस के बाद ब्लिंक अगर कर रहा होता मतलब स्पेस था, बट यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है ई के बाद, मतलब इस ई के बाद कोई कैरेक्टर नहीं। बट इफ आई राइट हियर एस डॉट एल स्ट्रिप एंड देन एस डॉट आर स्ट्रिप, स्ट्रिप, देखो यहां पर स्टार्टिंग का स्पेस हट गया बट लास्ट वाला होगा, ये आ रहा है, ठीक है, ये स्पेसेस हैं, यहाँ पे कर्सर के बाद स्पेसेस हैं, यहाँ कर्सर के बाद कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पर नहीं है लेकिन स्टार्टिंग में है। तो इस तरह से हम क्या देख सकते हैं, स्ट्रिप स्टार्टिंग और लास्ट के स्पेसेस को हटाता है, एल स्ट्रिप लेफ्ट स्पेस हटाएगा, मिडिल वाले नहीं हटाएगा, आर स्ट्रिप राइट वाला बाद में से हटाएगा, मिडिल में से ये नहीं हटाएगा, स्टार्टिंग से भी नहीं हटाएगा।
सर आप ये प्रिंट कमांड पे वो डिजिट डाल रहे थे 4, वो क्यों डाल रहे थे? वो 4 डिजिट नहीं थी, वो बाय मिस्टेक प्रेस हो गया था मुझसे। ओके वो 4 अगर आप लिखेंगे तो एरर आ जाएगी, अगर मैं लिख दूं तो एरर आएगी। देखते हैं। श्योर। Fine. So suppose in the same program, I need to count like अब ये थोड़ा सा s dot count, काउंट मेथड और लेन फंक्शन में डिफरेंस। लेन फंक्शन स्ट्रिंग की लेंथ बताता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। काउंट मेथड स्ट्रिंग के अंदर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर या किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग का अक्रेंस बताता है, कितनी बार आया। तो मैंने लिखा यहां पर मान लीजिए ए, तो ये मुझे बताएगा इस एस के अंदर ए कितनी बार आया। 1 2। तो अब मैं यहां पर जो लिखने जा रहा हूं इसका आंसर शोभित बताएंगे। एस डॉट काउंट स्पेस। बताओ अगर मैं इससे पूछूं काउंट से स्पेस कितने आएंगे तो ये कितने स्पेस देगा? सर 3। अच्छा थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इस पर, उसके बाद बात करेंगे। आप जब यहाँ पर काउंट कर रहे हैं तो क्या आपने ऐसा सोचा ब्रेन में कि हमारा वो स्टेप हो चुका है, तो अब स्टार्टिंग के स्पेस और लास्ट के स्पेस हट गए होंगे और सिर्फ ये वाला बचे होगा 1 2 3? ये सर यही सोचा था सर और मैंने। आपने ये सोचा तो आप साथ में ये भी सोचिए कि क्या इस तरह से स्ट्रिप मेथड जब हमारा किसी भी स्ट्रिंग से स्ट्रिप कर रहा है तो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में स्ट्रिप करेगा या एक कॉपी बनाएगा? कॉपी बनाएगा, यानी कि इट इज सेम एज लोअर अपर। स्ट्रिप से भी हमारा एक नई कॉपी बनती है और वो नई कॉपी आपने कहीं किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करी है, यानी कि एस अभी भी हमारा क्या कर रहा होगा, उसी पुराने वाले को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो लोअर अपर ही नहीं, हर वो मेथड, देखो थोड़ा जनरल स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनेंगे, हर वो ऑपरेशन जिससे स्ट्रिंग में आपको लगता है मॉडिफिकेशन हुआ होगा, एक्चुअल में एक नई कॉपी बनती है और एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है। अब आपने कोड जो लिखा है उसमें जो नई कॉपी बनी है उसको आप पुराने वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं या एक नए वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं या प्रिंट में लिख रहे हैं, डिपेंड करेगा आगे का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहां पर जब एस है तो वो यही वाला एस होना चाहिए और उसके हिसाब से आउटपुट आना चाहिए। अब आउटपुट एग्जैक्टली क्या आएगा, रन करा के देख लेते हैं। इट इज गिवन 7 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 3 स्पेस है, 3 काउंट कर रहा है, ऑब्वियसली 3 ही है यहाँ पर, 4 5 6 7। चलिए, तो ये हमारा काउंट मेथड भी समझ में आ जाता है, काउंट कैसे आ रहा है। अब यहाँ पर मैंने मान लीजिए लिख दिया एक स्ट्रिंग लिख दी, धोनी इज ए विकेट कीपर, धोनी कैप्टन, he is the finisher। मान लीजिए ये स्ट्रिंग मेरे पास है, धोनी तो रिटायर हो गए, तो जहां जहां पर इज आ रहा है वहां वहां पर मुझे वाज करना है। धोनी वाज द विकेट कीपर, धोनी वाज द कैप्टन, ही वाज द फिनिशर, मतलब कुछ इस तरह से मुझे करना है। तो किसी भी एक करेक्टर या किसी भी एक सब स्ट्रिंग की जगह पर मुझे दूसरी सब स्ट्रिंग लगानी है, तो कैसे यहाँ पर हम लगाएंगे, उसके लिए हमें एक मेथड दिया गया, इसका नाम है रिप्लेस।
रिप्लेस में आपको दो चीजें पास करनी है। पहला वो सब स्ट्रिंग जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं, इस एस के अंदर वो सब स्ट्रिंग जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं, इस नई स्ट्रिंग जिसके साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। ठीक है, प्रिंट ऑफ एस। ध्रुव बताइए, जब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो लास्ट में जब एस प्रिंट होगा तो क्या आउटपुट आएगा उसको? Sir, Dhoni was a wicket. Dhoni was the captain. He was the finisher. तो अभी भी आप ये कह रहे हैं कि वॉज आएगा, और इसका आउटपुट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बोलेगा नहीं, यही आएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन ज्योति बताएंगे। ज्योति बताइए ऐसा क्यों हुआ? सर क्योंकि हमने वेरिएबल असाइन नहीं किया। एग्जैक्टली अभी मैंने बताया था, हर वो मेथड जो आपको ये लगेगा कि ये हमारे स्ट्रिंग में जाकर चेंज कर देगा, इल्यूजन है, वो चेंज नहीं करता है। ऐसे मान लो स्ट्रिंग पाइथन के अंदर पत्थर की लकीर होती है, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई इसमें चेंज करने की कोशिश करेगा तो एरर भी नहीं देंगे, हम साइड में एक नई कॉपी बना देंगे और उसमें वो सारे चेंजेस आपको नजर आएंगे जो आप करना चाहते थे एक्चुअल स्ट्रिंग में। सर सेम अगर ऊपर ही प्रिंट कमांड लगा दिया तो भी काम करेगा ना? एग्जैक्टली अगर आप प्रिंट एस डॉट रिप्लेस करेंगे फिर भी ठीक है, बट आप चाहते हैं कि लेटर ऑन भी जो हमारा नई कॉपी बनी है उसका इस्तेमाल किया जाए, तो आप उसको एक नए वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, आप इसको एस में ही रख सकते हैं, और आप चाहें तो इसे प्रिंट में यूज कर सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना अकॉर्डिंग टू योर कोड रिक्वायरमेंट। फाइन, so this is the concept of replace method. अब मुझे क्या करना है, मुझे यूजर से कोई एक ऑडियो फाइल .mp3 एक्सटेंशन की होनी चाहिए, उसका नाम यूजर से चाहिए। मान लीजिए कोई मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूं जिसमें मैं यूज करूंगा mp3 फाइल, तो उसका आधा कोड अभी हम लिख कर देखेंगे कि अगर यूजर से मैं mp3 फाइल इनपुट कराऊं और उसने mp3 नहीं दी तो हम उसे मना कर देंगे कि भाई आपने mp3 फाइल नहीं दी है। ध्यान रखना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम यूजर से जो आएगा उसको पूरा मैच कराएंगे, कंप्लीट स्ट्रिंग मैच कराएंगे, नहीं, हम उसका लास्ट का पोर्शन चेक कराएंगे। लास्ट का पोर्शन क्या .mp3 है, उसके पहले उसका नाम abc.mp3 है या hello.mp3, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में 4 कैरेक्टर .mp3 ये होने ही चाहिए। ठीक है, इन एनी केस। तो कैसे इसको लिखेंगे, यहां पर मैंने यूजर से इनपुट कराया, एंटर सॉन्ग और लिख दिया कि .mp3 ही देना, और जो भी सॉन्ग आया उसको एक वेरिएबल में रख लिया। तो जस्ट फॉर रीडेबिलिटी लेट्स से नेम इज सॉन्ग, तो सॉन्ग इज नथिंग, इट इज जस्ट ए वेरिएबल, आप कोई वेरिएबल यूज कर सकते हैं यहाँ पर। नाउ आपने कहा कि यूजर रन टाइम पर .mp3 किसी भी फॉर्मेट में लिख सकता है, तो आप इसको क्या करो, सबसे पहले लोअर में चेंज करा ताकि वो वाला कंफ्यूजन खत्म हो जाए, और आप चाहो तो इसको स्ट्रिप कर सकते हो। नाउ हियर आई नीड टू राइट इफ सॉन्ग, यानी कि जो स्ट्रिंग है इस पर एक मेथड कॉल करेंगे एंड्स विद। तो पाइथन के अंदर एक और मेथड होता है एंड्स विद। किसी भी स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग अगर एंड होती है इस सब स्ट्रिंग से जो मैं यहां लिखूंगा अभी .mp3, तो अगर ये वाली स्ट्रिंग एंड होती है इस सब स्ट्रिंग से तो एंड्स विद ट्रू हमें बताएगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स बताएगा। इफ सॉन्ग डॉट एंड्स विद .mp3 you print valid file, else you will print invalid. abc.mp3
invalid file because this is MP-E3. I want MP3 in any case. So let me run this program again. X.mp. Now this time you will have valid. तो किसी भी स्ट्रिंग का अगर आप ये चेक करना चाहते हैं जो एंड हो रहा है वो किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हमारे पास एंड्स विद नाम का मेथड. ठीक. Similarly, we are having one more method that is starts with. Using starts with method, you can check whether a string is starting from this particular substring or not. Fine. So starts with आप अपने end पर करके देख सकते हैं इसी तरह से. Now, in Python programming language, a string is iterable. So when I use this word, you can pronounce it iterable or iterable. दोनों ही सही है. ठीक है, जो आप चाहे वो प्रोनाउंस कर सकते हैं. लिखना आपको यही है, ITERABL. So in some textbook or in the interview room, if interviewer asks what is the meaning of iterable, so in simple terms you will reply iterable is a concept that can be used with for loop directly. Fine. It means if I'm having a string s equal to Python, and what I want to iterate all the characters of this s one by one. So you can directly use this string with for loop for I in s. You need not to write range function. Generally, we focus on range function whenever we use for loop. No, actual concept is in for loop, we use any iterable. Range function is iterable concept. That's why we use range in the for loop. We can use any iterable data type in place of range function or after n keyword. So as is iterable, that is string is iterable. So what will happen? ये जो फॉर लूप है ये कितने इटरेशन करेगा, मतलब कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, उतनी बार जिस इटरेबल को आपने यहाँ लिखा है उसकी लेंथ जितनी है. इसकी लेंथ 1 2 3 4 5 6 हमें नहीं निकालनी, अपने आप निकालेगा फॉर लूप. इसका मतलब फॉर लूप 6 बार चलेगा. हर इटरेशन पर आई को क्या मिलेगा, एक एक करेक्टर जो इस एस के अंदर है. तो पहली इटरेशन पर क्या मिलेगा, पी आई के अंदर आ जाएगा. अब आप फॉर लूप के अंदर आई का यूसेज करते हैं तो आई का मतलब क्या हो गया, पी हो गया. सेकंड इटरेशन में आई में वाई आ जाएगा. तो अब अगर आप लूप के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आई का मतलब वाई होगा. ठीक है, वाई टी वाई टी loop. So this is known as iterable. String is iterable concept. Now thing is, what is it possible to get a specific character which is present on a specific position? Suppose I need to get only this t. I don't want to iterate all characters. I just need to get a specific character that is t. Is it possible or not? Answer is yes. A string supports indexing and slicing. Very important concept, indexing and slicing. So I'm introducing this concept, indexing and slicing with a string, but it also works on multiple data types like list, tuple, set, dictionary, numpy, pandas, and etc. etc. Fine. So suppose I'm having here s equal to Python. तो जब पाइथन को मेमोरी में लाया गया, पाइथन को जब मेमोरी में जगह दी गई तो किस तरह से दी गई इसको पहले समझना होगा हमारे लिए. उसके बाद फिर हमारी समझ में आएगा ये कैसे हो रहा है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन तैयार करेंगे. So you can think like this.
दिस इज P, दिस इज। और हर करेक्टर जो हमारा स्ट्रिंग के अंदर होता है उसको एक पोजीशन दी जाती है, उस पोजीशन को इंडेक्स भी कहा जाता है। लेफ्ट टू राइट चलने पर हम पोजीशन जब देंगे तो सबसे पहले करेक्टर की पोजीशन 0 देंगे, तो P 0 पोजीशन पर माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर 1 पे माना जाएगा, फिर 2 पर माना जाएगा, ये 3 पर माना जाएगा, ये 4 और ये। स्ट्रिंग कितनी भी बड़ी हो सकती है, स्ट्रिंग में अगर n करेक्टर्स हैं तो फर्स्ट करेक्टर का पोजीशन या इंडेक्स 0 होगा और nth करेक्टर का जो पोजीशन होगा वो n-1 होगा। ठीक है। अब पाइथन के अंदर एक और तरह की स्ट्रिंग भी हो, एक और तरह की पोजीशनिंग भी होती है। ये जो पोजीशनिंग मैंने आपके सामने लिखी है, ये C++, जावा, .NET, PHP सारी लैंग्वेजेस सपोर्ट करती हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक और डिफरेंट टाइप की इंडेक्सिंग दी गई जिससे कि हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट फास्ट हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर करेक्टर को एक्सेस करना थोड़ा फास्ट हो जाएगा। डेट इज रिवर्स इंडेक्सिंग। और रिवर्स इंडेक्सिंग देनी शुरू होती है लास्ट करेक्टर से। लास्ट करेक्टर का जो इंडेक्स है या पोजीशन है वो 5 है, एज वेल एज लास्ट करेक्टर की पोजीशन यहाँ पर -1 भी है। लास्ट करेक्टर को -1 पोजीशन पर भी माना जाता है और उसके पहले वाले को फिर -2, उसके पहले वाले को -3। इस तरह से यहाँ पर हम लोग दिस इज -3, दिस इज -6, -5, -4, you can think like this. Now, अब आपको अगर इस स्ट्रिंग का कोई भी पर्टिकुलर करेक्टर चाहिए, सो पाइथन प्रोवाइड्स इंडेक्स ऑपरेटर. Index operator is represented by symbol pair of square brackets. This. And between this brackets, you have to write position. You can write any position, either positive or negative. कोई सी भी आप लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना है हमें इस बात का, सिंटैक्स क्या होगा। सपोज I need to get this T. This T is present in which string? In S string. So first you will use that particular string variable, that is S. After this S, you need to write square bracket pair. और यहाँ पर कोई आपने डॉट नहीं लगाना है, डायरेक्ट लिखना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं, प्रीफिक्स। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर के बीच में क्या लिखेंगे, पोजीशन। तो मैंने लिखा यहाँ पे 2. सो नाउ इट विल गिव यू करेक्टर present at this position in this string S, and it will be 2, that is T. Now if you need to get this T, you can also use S of -4. both are same. T के पोजीशन 2 भी है, T की पोजीशन -4 भी है। फाइन। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा लिख दिया जो पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लाइक 7, तो 7 पोजीशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 या -6, -5 ये सब होता है। यू विल गेट एरर सेइंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स एरर। इसका मतलब ये हो गया कि मैं 2 वर्ड बोल रहा था, पोजीशन और इंडेक्स, हमारे लिए सही है, बट जब हम इंटरप्रेटर को देखते हैं, उसके मैसेजेस को समझते हैं, तो इंटरप्रेटर क्या वर्ड यूज कर रहा है, इंडेक्स वर्ड। तो अब हम आगे इंडेक्स वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बोलने के लिए पोजीशन इंडेक्स वर्ड एक ही है, बट जो इंटरनली लैंग्वेज यूज कर रही है वर्ड, दैट इज इंडेक्स। क्या आप देख पा रहे हैं, लैंग्वेज में इंडेक्स वर्ड यूज कर रहा है। फाइन, तो ये आपको कमेंट करते हुए चलिए। अब
क्या हम किसी स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग गेट कर सकते हैं? किसी भी स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग मुझे गेट करनी है. लाइक आई नीड टू गेट this YTH. So it is possible or not? Yes, sir. We can get substring from a string. तो जब मैं substring word बोलता हूँ तो conceptually it is a part of a string. Syntactically it is also a string. तो notation same ही है. Substring भी quotes में लिखी जाएगी और string भी quotes में लिखी जाती है. तो substring सिर्फ concept में है वो string ही, ठीक है, जो एक पार्ट को रिप्रेजेंट करती है. अब यहाँ पर कैसे इसको लिखेंगे उसको समझते हैं. एस लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे. तो पाइथन ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम होता है स्लाइसिंग. स्लाइस मतलब पीस बनाना. जैसे आपके पास कुकुम्बर, उसके स्लाइस बना दिया, टोमेटो उसके स्लाइस बना दिए, है ना, तो आप स्लाइस बना रहे हैं, यानी कि पीसेस बना रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पर यही कर रहे हैं, आप क्या करते हैं, स्लाइस कर रहे हैं. तो यहाँ पर आप स्ट्रिंग को स्लाइस करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, पार्ट मिल जाएगा, एक पीस मिल जाएगा. उस पीस को सब स्ट्रिंग कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है. तो कैसे करें यहाँ पर इम्प्लीमेंट. सबसे पहले आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, जो सब स्ट्रिंग आप बनाना चाहते हैं इसमें से वो किस पोजीशन से स्टार्ट होगी, वो स्टार्टिंग पोजीशन आप बताइए. स्टार्टिंग पोजीशन मैंने लिख दिया 1. मुझे YTH चाहिए तो स्टार्टिंग करनी है 1 से. आप 1 कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद आपको बताना है कि ये जो सब स्ट्रिंग आप बनाएंगे जो Y से स्टार्ट होगी, तो ये सब स्ट्रिंग कहाँ तक आपको चाहिए. जहाँ तक आपको चाहिए उस करेक्टर का पोजीशन आप लिख दीजिए. कैसे, कॉलॉन. कॉलॉन का यूज करेंगे और मैंने लिख दिया यहाँ पर 3. अब यहाँ पर ट्विस्ट आता है, जैसे हमारा रेंज फंक्शन आपने कभी समझा था उसी तरह से कुछ कुछ यहाँ पर यही है. जो 1 है यानी कि जो स्टार्टिंग पोजीशन आप बताते हैं ये इंक्लूसिव होती है. इट मीन्स इस पोजीशन पर जो करेक्टर है वो सब स्ट्रिंग में आपको मिलेगा. लेकिन जो स्टॉप पोजीशन है, मेरे वाले कोड में मैंने 3 लिखी हुई है, स्टॉप पोजीशन एक्सक्लूसिव होती है. एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि वो करेक्टर जो इस पोजीशन पर आप बता रहे हैं वो सब स्ट्रिंग में नहीं आएगा. उससे पहले पोजीशन तक का करेक्टर आपका सब स्ट्रिंग में नजर आएगा. यानी कि इसका आउटपुट आएगा Y और T, क्योंकि थर्ड पोजीशन एक्सक्लूसिव है और फर्स्ट पोजीशन इंक्लूसिव है. तो ये स्टार्ट पोजीशन होती है और ये स्टॉप पोजीशन हमारी होती है, Y और T. अब देखो, इसी काम को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि मैं -5 से शुरू करूंगा, क्योंकि 1 का मतलब -5 भी तो है, दोनों का मतलब एक ही है. तो 3 का मतलब -3 भी है, हमने कहा, तो दोनों का आउटपुट बिल्कुल सेम आएगा, मतलब एक ही दोनों. ठीक है. और आपको H भी चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, 4. और यहां पर क्या लिखेंगे फिर, माइनस, क्योंकि 4 का मतलब -2 भी है. तो यू विल गेट दिस YTH. ठीक है. अब मान लीजिए आप ये कहते हैं कि 1 का मतलब -5 है और 4 का मतलब -2 है, तो क्या मैं इनको मिक्स कर सकता हूँ कि भाई 1 ये हो गया, अब मुझे 4 तक जाना था तो 4 की जगह -2 में लिख सकता हूँ. यहाँ पर हमने कहा बिल्कुल इसका मतलब एक ही, तो तीनों का मतलब एक ही. ठीक है. आप 1 to 4 सब स्ट्रिंग बनाएं या -5 to -2 सब स्ट्रिंग बनाएं या 1 to -2 बनाएं या -5 to 4 बनाएं, सबका मतलब एक ही है. ठीक? -5 to, अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे जो इस बार सब स्ट्रिंग चाहिए वो P
P चाहिए, T चाहिए, O चाहिए। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, मैं लिखा S 0.5। अगर मैं 0.5 लिखता हूँ तो इट विल गिव यू PYTHO, क्योंकि 5 पर जो करेक्टर है वो तो एक्सक्लूसिव हो गया। मुझे अल्टरनेट करेक्टर चाहिए, P के बाद Y नहीं चाहिए, P के बाद T चाहिए, फिर T के बाद H नहीं चाहिए, T के बाद O चाहिए। तो यहाँ पर हम थर्ड वैल्यू भी लिख सकते हैं, दैट इज योर स्टेप वैल्यू। बाय डिफॉल्ट जब आप नहीं लिख रहे थे शुरू के 4 एक्सप्रेशन में, सो बाय डिफॉल्ट ये 1 कंसीडर हो रही थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2। इसका मतलब हो गया आप सब स्ट्रिंग 0 पोजीशन से बनाना स्टार्ट करेंगे, 5th पोजीशन तक जाएंगे एक्सक्लूसिव होगा, यानी कि 4 तक ही सब स्ट्रिंग आपको नजर आएगी। लेकिन इस बार आपके जो इंटरवल है वो 2 का, यानी स्टेप 2 का है। 0 के बाद आप सेकंड करेक्टर को पकड़ेंगे, फिर उसका 4th को पकड़ेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब थोड़ा सा इसमें एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। वो कॉन्सेप्ट है कि आप सब स्ट्रिंग क्या रिवर्स डायरेक्शन में बना सकते हैं। तो अभी तक आप YTH PTO यानी कि लेफ्ट टू राइट ही बना रहे हैं, क्या ऐसे सब स्ट्रिंग नहीं बन सकती? हमने कहा बिल्कुल बन सकती है, दोनों तरफ से सब स्ट्रिंग बनाई जा सकती है। तो हम बाय डिफॉल्ट जब नहीं सोचते हैं तो फिर लेफ्ट टू राइट ही सोच रहे होते हैं। तो जब आप लेफ्ट टू राइट सब स्ट्रिंग बनाते हैं तो आपका जो स्टेप होना चाहिए वो हमारा स्टेप होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। और जब आप रिवर्स सब स्ट्रिंग बनाते हैं तो आपका जो स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए नेगेटिव। अब आप जो चाहें वो सब स्ट्रिंग बना सकते हैं, कोई मना नहीं, चलो बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पर प्रिंट एस। नाउ दिस टाइम व्हाट आई वांट HTY, ये चाहिए मुझे HTY। सो मुझे शुरू कहाँ से करना है इस बार शुरू करना है मुझे 3 से। पहले हम इसको देखते हैं, ऊपर वाले इंडेक्स मुझे 3 से शुरू करना है, ठीक है। तो स्टार्ट पोजीशन 3, कॉल ऑन। अब आपको कहाँ तक जाना है, 0 तक जाना है, ये आ गया हम 0 पर। तो 3 से शुरू करना है, 0 तक जाना है, रिवर्स स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं तो स्टेप क्या लेंगे आप, नेगेटिव। अब नेगेटिव कितना, नेगेटिव -1 -2 कितना, हमने -1 लेंगे तो एक एक इंटरवल होगा रिवर्स डायरेक्शन में, -2 लेंगे तो माइनस का मतलब है रिवर्स डायरेक्शन, लेकिन इंटरवल कितने का होगा वो उसका मैग्नीट्यूड होगा, यानी 2 लिखेंगे -2 तो रिवर्स डायरेक्शन में 2 के इंटरवल के साथ सब स्ट्रिंग बनेगी। तो मैंने लिख दिया माइनस, HT, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं यहां पर मान लीजिए 3 से स्टार्ट करता हूं, -1 का स्टेप मैं लेना चाह रहा हूं, मुझे ना इस बार P भी चाहिए, मतलब मुझे P इंक्लूड करना है। तो कैसे P को इंक्लूड करें, HTY को अगर मैं 0 लिखूंगा तो ये तो एक्सक्लूसिव है, ये तो मना कर देगा कि भाई मैं तो एक्सक्लूसिव हूं, Y तक आएगा। तो यहाँ पर लिखें क्या, तो ये तो लिखना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने -1 लिख दिया सोचते हुए कि भाई 0 के बाद -1 ही तो आएगा, तो इंटरनली इंटरप्रेटर क्या एज्यूम करेगा कि भाई आप 3 से शुरू करना चाहते हैं और -1 पे जाएंगे, यानी कि 3 से शुरू करेंगे और कहाँ जाएंगे, -1 पे जाएंगे, यानी आपको राइट डायरेक्शन में ले जाएगा। लेकिन आप तो ऐसा नहीं चाहते थे, तो एक काम करते हैं ना, -7 कर देते हैं। तो -7 तो इधर ही मिलेगा, अब -7 तो इधर ही मिलेगा, उधर तो है ही नहीं हमारा। बट द थिंग इज -7 क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स तो -7 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्या करें इस सिचुएशन में, तो यहाँ पर एक पाइथन ने ट्रिक दी। वो ट्रिक क्या है उसकी बात करते हैं। वो ट्रिक ये है कि अगर आप स्टॉप पोजीशन नहीं लिखते हैं तो स्टॉप पोजीशन ना लिखने पर बाय डिफॉल्ट
अप टू लास्ट करेक्टर इंक्लूसिव मैनर उसको कंसीडर किया जाता है। यानी कि जब कभी आपको अप टू लास्ट करेक्टर इंक्लूसिव मैनर में चाहिए होता है तो आप स्टॉप आर्गुमेंट को स्किप कर देते हैं, उसको आप नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है अप टू लास्ट करेक्टर इन विच डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अप टू लास्ट करेक्टर और इन रिवर्स डायरेक्शन, बिकॉज इफ यू राइट 3 एंड यहाँ पर आप नहीं लिखते तो आप कह रहे हैं अप टू लास्ट करेक्टर, तो यानी कि पी तक आएगा ये या एन तक आएगा, तो ये डिसाइड किससे होगा, ये डिसाइड होगा आपका स्टेप से। स्टेप आपका कहाँ लेके जा रहा है आपको, हमने कहा रिवर्स डायरेक्शन में लेके जा रहा है। इसका मतलब this substring will start from third position and will go up to last character in reverse direction. Why I am using this word reverse direction? Because of this negative index. So now you can see the result HTYP. Now in the same expression, if I change step value, अब ये मत कहना कि स्टॉप नहीं होता है तो अप टू लास्ट करेक्टर होता है, आपको स्टेप देखना पड़ेगा। इफ स्टॉप पोजीशन इज नॉट गिवन देन इट विल गो अप टू लास्ट करेक्टर एंड direction will be decided according to the step sign. If step sign is negative, then it will be the last character in reverse direction, and step is positive, then it will be the last character in forward direction. तो इसका मतलब है कि 3 से शुरू करेंगे, कहां तक जाएंगे, n तक जाएंगे। इस बार आएगा HON। फाइन। Similarly, if I do not specify start position, then what will be the value of this start position? Don't say 0. It will be the first character. It can be 0 position character or it can be -1 position character. It depends on your step sign. If step is positive, then it will be 0. Fine. So you will get a substring that will start from 0, that is P, and will go up to 2, but in exclusive manner, क्योंकि आपने लिखा है, जब आप लिखते हैं तो उस पोजीशन को एक्सक्लूसिव माना जाएगा स्टॉप के लिए, तो ये आएगा P और Y। Now if I write same expression with negative step, अब स्टार्ट की वैल्यू 0 नहीं है, अब स्टार्ट की वैल्यू -1 है। ठीक है, यानी कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम -1, दैट इज n, और 2 तक चलेगा NOH, क्योंकि 2 हमारा एक्सक्लूसिव होगा। फाइन, तो आई थिंक ये आपको आ गया। अब फाइनली अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैं स्टेप लिखना भूल गया या मैं लिख ही नहीं रहा, अब बताओ स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आपने कहा था स्टार्ट और स्टॉप की डिफॉल्ट वैल्यू स्टेप से डिसाइड करी जाती है, और अगर बंदे ने स्टेप ही नहीं लिखा है तो कहां से करें डिसाइड? तो पहले आपको पाइथन से पूछना होगा भाई स्टेप अगर नहीं होता है तो स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, तो पाइथन का क्लियर आंसर है हमेशा +1 होती है, हमेशा +1 होती है। कब? जब आप स्टेप नहीं लिखते हैं, जैसे कि यहां नहीं लिखा, यहां नहीं लिखा, यहां नहीं लिखा, तो इन चारों में +1। आप इस कॉलम को भी चाहे लगाएं या ना लगाएं, एक ही बात है, ये लगा दें ना लगाएं तब भी स्टेप की वैल्यू +1 है, लगा दें बट स्टेप ना लिखें तब भी उसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी, +1 मानी जाएगी। ठीक है, अगर स्टेप की वैल्यू पॉजिटिव मानी गई तो स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, तो यानी कि 0 और 1 ये 2 पोजीशन के कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे। आयुष बताइए, जो मैं लिख रहा हूं इसका आउटपुट क्या होगा? सर रिवर्स हो जाएगा पूरा। फाइन,
NOHTYP. ठीक है, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम -1 एंड विल गो अप टू लास्ट करेक्टर इन रिवर्स डायरेक्शन. व्हाई? बिकॉज स्टेप इज नेगेटिव. सो इन सिंपल टर्म यू कैन से it will give you reverse of the string. NOHTY. Now let me write interesting scenario. S 1, 10, 1. यानी कि आप स्टेप पॉजिटिव है, सब स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जहां से आप शुरू करेंगे वो तो सही है y से, जहां आप जाना चाहते हैं वो तो है ही नहीं हमारे पास. तो देखो, जब हम इंडेक्स ऑपरेटर की बात करते हैं इंडिविजुअली इंडेक्स ऑपरेटर की, तो ये रूल है कि इंडेक्स एग्जिस्ट होना चाहिए. लेकिन जब आप स्लाइसिंग में आते हैं और स्लाइसिंग में आप ऐसा इंडेक्स लिखते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो बाय डिफॉल्ट उसकी जगह पर पाइथन क्या कंसीडर करता है? अप टू लास्ट करेक्टर. तो ये जो 10 है इसको हटाकर मान लीजिए एम्प्टी कर दिया जाएगा, और जब ये एम्प्टी कर दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? अप टू लास्ट करेक्टर. तो स्लाइसिंग में इंडेक्स एरर नहीं आती, और जो भी आपने इंडेक्स ऐसा लिख दिया है जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसकी जगह पर अप टू लास्ट करेक्टर माना जाता है. ठीक है, तो ये आ गया आपका YTHO. तो आप चाहे यहाँ पे 10 लिखें, चाहे 100 लिखें, चाहे 1000 लिखें, सेम आउटपुट है. तो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि इंडेक्सिंग में, इंडिविजुअल इंडेक्सिंग में एरर आती है, लेकिन स्लाइसिंग में एरर नहीं आती, और ये अप टू लास्ट करेक्टर हमारा माना जाएगा. नाउ यस सर, आप जैसे एग्जाम्पल एक सिंपल से एग्जाम्पल कोड करके बताते हैं, मेरा एक कंफ्यूजन है जो अक्सर मेरे को होता है. जब मैं स्टेप 1 लिखती हूँ ना, तो मुझे हमेशा लगता है कि एक कैरेक्टर छोड़ के, मैं आई मीन 1 और 2 में हमेशा मैं कंफ्यूज रहती हूँ. इसको कैसे डिमार्क कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? 1 मीन्स हर करेक्टर के बीच का डिफरेंस 1 आना चाहिए, उनकी पोजीशन के बीच का डिफरेंस 1 आना चाहिए. जैसे अगर यहाँ 1 लिखा है, इसका मतलब है कि 1 - 0 1, 2 - 1 1, ओके 3 - 2 1. इस तरह से आप सोचें. ओके. जब आप 2 लिखेंगे, और इसका मतलब है कि दो जो हमारे कंसेक्यूटिव करेक्टर्स आ रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस 2 आना चाहिए, उनकी पोजीशन का डिफरेंस. तो ये कब आएगा? जब 2 - 0 होगा. इस तरह से आप समझ. हाँ, करेक्ट. ओके ओके ओके, तो अब समझा. यहाँ पर हमने क्या करा? हाँ, एक और इंटरेस्टिंग सिनेरियो मैं आपको बताने जा रहा था, वो ये कि भाई S1, 4 अगर लिखने वाले ने स्टेप लिख दिया 0, भाई अभी आपने समझाया स्टेप नेगेटिव होगा, तो स्टॉप की वैल्यू अप टू लास्ट करेक्टर होगी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. स्टेप नेगेटिव होगा तो स्टॉप की डिफॉल्ट वैल्यू हमारी अप टू लास्ट करेक्टर होगी रिवर्स डायरेक्शन. बट अगर किसी ने स्टेप 0 लिख दिया, तो 0 को आप क्या मानते हैं मैथमेटिकली, नेगेटिव या पॉजिटिव? तो 0 होने पर स्टेप की वैल्यू क्या मानी जाए? क्योंकि नेगेटिव होने पर तो मुझे पता है कि भाई रिवर्स डायरेक्शन में अप टू लास्ट करेक्टर मानी जाएगी, और पॉजिटिव होने पर अप टू लास्ट करेक्टर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन मानी जाएगी. यहाँ तक तो क्लियर है. लेकिन अगर किसी ने 0 लिख दिया तो क्या माने? क्योंकि ये तो एक ऐसा यूज केस हो गया, बड़ी दिक्कत कर देगा. पाइथन ने यहाँ पर कहा कि अब हम एरर देना शुरू कर देंगे, स्टेप की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. देख लेते हैं क्या होगा. या स्लाइस स्टेप कैन नॉट बी 0. तो मैथमेटिकली 0 को पॉजिटिव माना गया है, बट यहाँ पर वो नहीं कंसीडर किया गया, और यहाँ पर क्या बोला गया कि स्लाइस यानी कि जो आप स्लाइसिंग करते हैं इसमें स्टेप की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. ठीक है. Now let me discuss one more use case. What will happen if I write here 2, then 5, -1? क्योंकि ये सिनेरियो मैंने अभी तक कवर नहीं करा, लगभग सारे सिनेरियो कवर कर लिए, ये वाला रह गया. 2, :5, :-1.
सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस? सो पहले तो हम समझते हैं इंटरप्रिटेशन क्या है, क्या चाहते हो आप इसमें। हम चाहते हैं भाई सब स्ट्रिंग बनाना दैट विल स्टार्ट फ्रॉम सेकंड पोजीशन दैट इज टी एंड इट विल गो अप टू 5 इन एक्सक्लूसिव मैनर दैट इज आप चाहते हैं टी एच ओ ये आना चाहिए, यानी कि आप मूव करना चाहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो स्टेप को क्या रखना चाहिए आपको पॉजिटिव, लेकिन आप स्टेप के लेके चल रहे हैं नेगेटिव, तो ये एरर नहीं आएगी। तो इस तरह की स्लाइसिंग में एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाएगी। अगर आपका जो इंडेक्स है वो हमारा स्टेप साइज नेगेटिव है, लेकिन आपकी स्टार्ट और स्टॉप ऐसे हैं जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनाना चाह रहे हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग बनेगी एंड वाइस वर्सा आल्सो, ठीक है, you will get empty string। तो स्टार्ट से शुरू करते हुए स्टेप लेते हुए क्या स्टॉप तक पहुंचा जा सकता है? यस, तो आपको सब स्ट्रिंग मिलेगी, नो तो आपको एम्प्टी सब स्ट्रिंग मिलेगी, एरर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए यूज केस हो गए। अब बात करते हैं इन यूज केस पर मुझे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखकर दिखाना है। यूजर से मैं एक स्ट्रिंग इनपुट कराऊंगा, enter text। now I need to check whether this text is palindrome or not। palindrome का मतलब क्या होता है, जिसको आप रिवर्स करके भी लिखें तो वही ओरिजिनल टेक्स्ट आ जाए। जैसे अगर मैं लिखता हूं यहां पर सिविक, अब सिविक का अपोजिट करो तो इसका अपोजिट क्या आएगा CIVIC, तो इसका जब रिवर्स करोगे तो रिवर्स भी सिविक ही आएगा। तो ऐसी स्ट्रिंग जिसका रिवर्स भी वही स्ट्रिंग आ जाता है जो ओरिजिनल था, ऐसी स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कहा जाता है। तो आई नीड टू राइट दैट कोड। सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई विल रीड टेक्स्ट फ्रॉम द यूजर and then I need to find the reverse of this string। so what I will do, I will write here colon -1, it will give you reverse string। let me store it into a new variable that is rs। now I will compare, if s equal to rs it means original string and reverse string both are same। if both are same that means this is palindrome, else सर डबल इक्वल टू का मीनिंग क्या था? कंपैरिजन, कंपेयर करना, दो लोगों को कंपेयर करना, दो वैल्यूज को कंपेयर करना। सिंगल इक्वल टू मतलब होता है असाइन करना। ABC का उल्टा सी भी आएगा, ABC और सी भी दो अलग चीज। Fine. So this is about string handling concept. So I will share all the programs of this class over your email IDs that I'm having, as well as I will share assignments based on string concept. So I'm having these email IDs. You can check. If your email ID is not there, let me know. Write it in the chat of the Zoom. I will.